Manju Dagar with you, and today we are going to study class 11th topic sets. In our previous lecture we have studied about the types of sets. We have studied about the empty set, singleton set, finite set, infinite set, equal sets and equivalent sets. So today we will solve some problems related to that how we will find out that the given particular set is finite or infinite. So here I have written some parts and you have to consider yourself that which one is finite and which one is infinite. So let me help you. That set of concentric circles in a plane. किसी एक प्लेन के अंदर एक ही सेंटर से कितने सर्कल्स जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, इस तरीके के सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं जो सेम सेंटर रखते हैं. तो एक प्लेन के अंदर कितने ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स हो सकते हैं? इज दिस सेट फाइनाइट और इनफाइनाइट? सो now I think it is clear to everyone that it is a infinite set. It's an infinite set. So set of all English alphabets, and it is again well clear to everyone that the alphabets that are in English all are total 26 alphabets. So it's again a finite set. So now we are talking about this set. In this set, x belongs to capital N. Here, capital N denotes the set of all natural numbers. तो ये आपसे पूछ रहा है कि x ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है, such that this is the symbol of such that x is greater than 5. A 5 से greater natural number. It's countable or uncountable? Yeah, definitely it's uncountable. There are infinite natural numbers more than 5, so we can say that this is again an infinite set. So now we are talking about this one. Here x belongs to capital N. Capital N means set of natural numbers. X is again a natural number, and now this x is less than 200. So 200 से छोटा natural number means countable है. हम नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से करते हैं और 1 से लेकर 199 तक. दीज आर काउंटेबल. दैट मीन्स फाइनाइट. इट्स अ एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट. सो कम टू द नेक्स्ट. x belongs to z. Capital Z denotes the set of integers. Integers includes all positive natural numbers, their negatives and zero. तो यहाँ पर x हमारा इंटीजर है और ऐसा इंटीजर जो 5 से लेस है, लेस देन 5, then again it's a example of an infinite set because 5 से छोटे हमारे सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 और 1 to 4 ये सारे इंक्लूड होते हैं. यानी 5 से छोटे हमारे इंटीजर्स जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. So now come to the next part. X belongs to capital R. Capital R here denotes the set of real numbers. So ऐसे real numbers जो 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे means X एक ऐसा real number है that lies between 0 to 1, and we know that on our number line real numbers there are infinite real numbers that lies between 0 to 1. So it's again an example of infinite set. So in this way we can make more clear concept that which one is finite or which one is an infinite set. So now we will talk about that the equal sets. Equal sets means the elements should be same. Equivalent sets के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे दो sets जिनका कार्डिनल नंबर सेम होता है उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स. सपोज सेट ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, मींस कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है, देन वी कैन से दैट दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट. बट फॉर द टू सेट्स टू बी इक्वल दे शुड हैव द सेम 3 एलिमेंट्स. जो 3 एलिमेंट्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स है. सेट बी के अंदर हम देखते हैं कि सेट बी हमारा क्या है? रियल नंबर्स का सेट है. ऐसा सेट जो x है और वो x रियल नंबर है और उस रियल नंबर को अगर हम इसमें बिठाएं तो 0 आना चाहिए. तो इसको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं, x is
स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 1 और 1 का प्रोडक्ट 1 और 1 और 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा। दैट मीन्स माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x can be taken outside, we will left with x minus 1 x minus 1 equal to 0, x minus 1 into x minus 1 equal to 0. That means x should be equal to 1 only. In that case this polynomial will be equal to 0. इस पॉलिनोमियल को 0 होने के लिए x की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू आई है वो आई है 1। मीन्स जब हमारा x 1 होगा तभी हमारे पास ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ रहा है। मीन्स ये सेट जो B है हमारा उसके अंदर सिंगल एक एलिमेंट है 1। सो this is not equal to this set because this set is having 3 elements 1 2 3 and in set B we are having only one element that is 1. So let's talk about this C. C के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 और 3, तीन एलिमेंट्स वही है जो हमारे सेट A के अंदर है। और हमने आपको बताया था कि इक्वल सेट्स के केस में रिपीटेशन अलाउड है। मींस हमारा कोई एक एलिमेंट 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो A और C के अंदर हमें नजर आ रहा है कि जो एलिमेंट्स 1 2 3 सेट A में है वही एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 सेट C के अंदर है। दैट मींस these two sets are equal sets. So now we will consider the case of D. It is the set of all those real numbers. X belongs to R means it is the set of real numbers. ऐसे real numbers जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं मीन्स यहाँ पर x की जो भी वैल्यू पुट करने से हमें 0 मिलता हो वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आएंगे। तो हम देख चुके हैं कि हमारा ये सेट के अंदर एलिमेंट 1 था और इस सेट के अंदर 1 2 3 और इस सेट के अंदर भी 1 2 3। दैट मीन्स इक्वल जज करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। अगर हम उनको x की जगह पर रिप्लेस करके सॉल्व करें और हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये सेट भी क्या है, इक्वल है। अगर तीनों पुट करने से 0 आ रहा है तो सेट A और C के इक्वल सेट आएगा और सिर्फ 1 पुट करने से अगर 0 आता है तो हमारा सेट B के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से सेट जो आपको गिवन है वो हमारे फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से सेट्स जो हमें दिए हुए हैं वो इनफाइनाइट है, इक्वल और इक्विवेलेंट। इनके बीच भी आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट के अलावा सिंगलटन और एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स सबको क्लियर है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं 5 से या फिर इस ब्रेसेस के अंदर हम कुछ नहीं दिखाएंगे। सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। सबसेट्स किसी भी सेट के टुकड़े को हम क्या कह सकते हैं, उसका पार्ट, उसका हिस्सा। इसी तरीके से हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सेट A के अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। नाउ वी हैव टू फॉर्म द सबसेट्स ऑफ दिस सेट। इस सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको एक बात बताएं कि हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एम्प्टी सेट है, फाई जिसे हम बोल रहे हैं, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 2 चीजें तो हमारे पास आ चुकी है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड सेट इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मींस हमारे पास एक तो इसका सबसेट हो गया 5, एक इसका सबसेट हो गया 1 2 3। ये 2 चीजें हमें कहां से मिली है? थ्योरम से। थ्योरम स्टेट्स दैट एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इन 2 चीजों से हमें ये 2 सबसेट मिल चुके हैं। इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं? एक सिंगलटन सेट्स हमारे ये बन सकते हैं और अब हम डबल सेट्स बना सकते हैं। 1 2 का एक बन सकता है, एक 1 3 का बन सकता है। इसके अलावा हम
way we can form. अब आप देख रहे हैं कि कितने सेट्स बने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इस तरीके से सेट ले सकते हैं कि 1 और 2 और 3 एक साथ रख के ये एक सेट हमारा फॉर्म होगा। मीन्स कितने हम सबसेट्स बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर है 2 की पावर 4, यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स 2 की पावर 3। तो टोटल सेट के अंदर कितने एलिमेंट, कितने सबसेट्स हो सकते हैं, वो हमारा ये फॉर्मूला हमें देगा। 2 की पावर 3 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी टोटल हमारे पास 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी जरूरत नहीं, दैट्स ऑल। तो किसी भी सेट के कितने टोटल सबसेट्स हो सकते हैं वो हमें एक जनरल फॉर्मूला दे रहा है, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सेट के कितने सबसेट्स बने। इसके अलावा अब हम जो पढ़ेंगे उसमें एक चीज और हम आपको बताते हैं कि इंटरवल्स के बारे में जानना जरूरी है। जब हम सबसेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं ऑन नंबर लाइन A and B। अगर हमें किसी क्लोज इंटरवल की बात करें तो ग्राफ में हम क्लोज इंटरवल को इस तरीके से दिखाएंगे। दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल AB। यहाँ पर नहीं, आप AB को लिखेंगे। Closed interval AB will be represented on number line like this. And if we will talk about ये आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड क्लोज और एक साइड ब्लैक। तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल, इधर A और ये हमारा B है, और ओपन इंटरवल B। तो एलिमेंट्स को हम कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करते, इसलिए हम इन्हें स्मॉल लेंगे। स्मॉल कैपिटल हम सेट्स के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम एलिमेंट्स को कैपिटल से डिनोट नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज इंटरवल ऑन नंबर लाइन, एंड हियर आल्सो क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल लाइक दिस। This is open closed interval, open from A side and closed from side B. And at the last, one more type, open interval AB. अब इन चारों में क्या डिफरेंस है वो हम स्टडी करेंगे। चारों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास जो x है वो A से बड़ा है, इक्वल भी हो सकता है, और B से छोटा और इक्वल दोनों साइड से क्लोज का मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यूज इंक्लूड है दैट विल बी ग्रेटर देन A एंड इक्वल टू A एंड लेस देन B और इक्वल टू B। If we will talk about this interval, all these values are greater than equal to A but less than B. B will not be included in this interval. In this case, x is greater than A but less than equal to B. And for this interval we can say that x is greater than A and less than B. यहाँ पर ना तो हमारा x A हो सकता है और ना ही हमारा x B हो सकता है। जो x की वैल्यू है that will be greater than A and less than B. यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू हमारी B से छोटी भी हो सकती है और B के बराबर भी। इस साइड से क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब B इंक्लूड है, B वैल्यू हो सकती है, और A इंक्लूड नहीं है, सिर्फ A से बड़ी वैल्यूज। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू A से बड़ी और A भी हो सकती है, लेकिन B से सिर्फ छोटी है, इसलिए B की तरफ हमारा ओपन इंटरवल है। दोनों साइड क्लोज्ड का मतलब दोनों से छोटी भी हो, A से बड़ी और B से छोटी, और दोनों के इक्वल भी वैल्यूज हो सकती है। So this is the case that we have studied about the types of intervals. अब जो लास्ट हमारा जो इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट बचता है that is power set.
Power set means it is the collection of all the subsets of a set. किसी भी सेट को लेकर कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, उन सभी का कलेक्शन हमारा जो है वो कहलाता है पावर सेट. पावर सेट जैसे हमने सेट ए को लिखा था 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ ए को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड इट इज द सेट collection of all the subsets 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3. तो ये हमारा किसका कलेक्शन है? सभी सबसेट्स का कलेक्शन. 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स ये हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 8. तो जितने भी हमारे सबसेट्स हैं, टोटल सबसेट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं पावर सेट. किसी भी सेट का पावर सेट इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. और एट द लास्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल मीन्स अगर आपको कंटेक्स्ट के अंदर कुछ सेट्स गिवन है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरीके से आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, तो उन सभी सेट्स का टोटल कलेक्शन जो है वो हमारा एक किसी बड़े सेट के अंदर आता है. उसे हम उस कंटेक्स्ट का हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट. यू से डिनोट करेंगे. यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे सेट्स हैं 2 5 6. सी हमारा है 1 2 5 8. तो इन सभी सेट्स का एक कंटेन करने वाला बड़ा सेट हमने नेचुरल नंबर्स जो है वो 10 तक के दिखा दिए. सो इन दिस केस दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट्स. ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट. So in our next lecture we will study or we will solve the problems related to the given concepts. So thank you for today. Thanks my dear students.